students, I am back with your new video of chapter 9 part 3 students. So students, you will think that in the first two parts I have done some innovative techniques. I have used the innovative techniques, right? But in this part it's a descriptions about that you have already known it. So that's why I will read you by with the help of the books. So what will be happen that you will see the textbook, and via with the help of the lines I can specially describe you what does it means. So in the first two parts, that was very interesting video, right? I hope that you all have enjoyed that video, because there was a lot of circumstances and I have make a lot of efforts on that video, students. So I am glad that you liked that video. So if you have liked it, so you should have to like my video, okay students? So we won't waste our time. I will not talk with your rubbish words. So let's begin our part 3 of the chapter 9, students. The earth, our habitat. So let's begin. Up to we have completed the longitude, latitude, pole star, everything we have completed it clearly, right students? So in this video we would like to start tropics zone. Means what is tropic and zone? So let's begin, students. From the given figure 9.10, means this one, students, you can see this one in your screen, students. Tropics and zone. So it becomes clear that earth is divided in different parts on the basis of difference in temperature, light, heat and cold. These parts are called zones. Regions receiving more or less light and heat have been divided as follows. So students, tropics. So this type of, you can see in your screen that this is a tropic, frigid zone, temperate zone, equator, temperate zone and frigid zone. Its upside was the north side and the downward side is the south side, students. So this whole have been divided in different parts. A lot of different parts are there on the basis of difference temperature. मतलब टेम्परेचर हर जगह सेम टेम्परेचर नहीं होता है, राइट स्टूडेंट्स? सो दैट्स द रीज़न दैट द डिफरेंस इज द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर के डिफरेंस के हिसाब से लाइट, हीट और कोल्ड होता है, राइट? मतलब हम लोग यहाँ पे है अभी, तो हमें ठंडी लग रही होगी या गर्मी लग रही होगी. कहीं और देश में आप जाओगे तो यू विल फील सम डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, राइट? सो दैट होल इज नोन एज अ जोन, स्टूडेंट्स. ओके, रीजन्स रिसीविंग मोर और लेस लाइट, मतलब जो रीजन्स में लाइट कम मिलते होंगे और ज़्यादा लाइट मिलते होंगे वो भी डिवाइडेड होते हैं बहुत सारे पार्ट्स में. सो वी विल सी दिस वन. See, zones have been divided into 3 parts. First one is torrid zone, that is also known as tropical zone, and excessive heat, मतलब बहुत ज़्यादा heat होगा, गर्मी होगी. Now the second one is temperate zone, that is moderate heat and cold, मतलब heat भी होगा और cold भी होगा, means there अच्छा weather, ठीक ठाक weather आप बोल सकते हो. Then the third one is frigid zone, that is polar zone, excessive cold, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड, students. Okay, now we will discuss about the types of motions of the earth में कितने सारे types के motions है उसके बारे में बात करेंगे. So like other planets, there are 2 types of motions of earth, मतलब हमारे earth में सिर्फ 2 types के motions है, students. Okay, so first one we will discuss about rotation. So this rotation you have already learn about it in your previous class when you were in class 5th, right students? So I know that you know it very well, what is rotation and what is revolution, students. So first we will see the rotation. As the top rotates on its axis, in the same way earth also rotates on its axis from west to east direction. This circular motion of earth is called daily motion. It is also called rotation. The earth completes a cycle of 1670 kilometers as per hour on equator. It takes 24 hours to complete this cycle. This speed has played an important role in shaping the earth's orange shape. So students, rotation.
I will give you some example by my hands so you can watch this out clearly. So if there is a sun in the middle side, right, and in the that side I have already shown you in the first part that suns are revolving around, means we all planets are just revolving around the sun. So the earth, our earth is have been rotated. For example, this my finger is our earth. So earth, and this one is sun and this one is earth. So earth will rotate like this way, okay, like this way, means in the whole circle manner. I have told you, means हम लोग इस तरह से चलेंगे, like, okay. And the whole circular motion of earth is known as daily motion, and that is called the rotation. मतलब अपनी ही जगह में round 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 घूमना, means they have to, the earth rotates on its axis, मतलब अपने ही जगह पे घूमना west to east, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन. सो एक्चुअली अर्थ कंप्लीट्स अ साइकिल, एक रोटेशन कंप्लीट करने में उनको उसको 1670 किलोमीटर्स लगते हैं पर आवर में 1670 किलोमीटर्स लगते हैं. सो if they wanted to complete this cycle, 24 hours that will take, मतलब 24 hours, in sense you can say that one day, whole one day which we leaves 24 hours, that will complete the one rotation of the earth. And this speed helps a important role in shaping the earth's orange shape. मतलब हमने बताया था ना स्टार्टिंग में कि अर्थ का एक ऑरेंज शेप है. सो ये जो स्पीड से अर्थ जाते हैं उसको ऑरेंज शेप में बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिवॉल्यूशन. The earth revolves around the sun as it rotates on its axis. It takes about 365 days for the earth to complete its revolution. We call this period as a year. An imaginary way to earth's rotation around the sun in the space has been determined, which is known as orbit. Along with this, the earth do not move in circular path, rather it moves in elliptical orbit. Distance between sun and earth is not same throughout the year. The earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 degree along its orbit. Due to this movement of earth, the seasons occur and day and night are extended and shortened. So students, our revolution, we will talk about the revolution. So earth revolves around the sun. हमने बात की थी कि अर्थ सन के इधर गिधर घूमता है, तो अर्थ अपने ही जगह में जो घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन. और पूरे सन, मतलब पूरे सन के पूरे राउंड करने, एक राउंड करना है सन का. जैसे कि ये सन है, फॉर एग्जांपल ये सन है, तो आप अर्थ है ये, तो ये अर्थ इस तरह से सन के गोल 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 घूमेंगे, राइट. तो ये पूरा एक गोल, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, तो ये एक गोल पूरा ऐसे जाने तक में, यहाँ तक आने तक में इट टेक्स 365.5 days. How many days? 365.5 days students. So to complete one revolution, मतलब सन का पूरा एक चक्कर करने में उनको 365 days लगते हैं स्टूडेंट्स. सो दिस पीरियड वी नोन एज अ ईयर. एक साल करके हम लोग बोलते हैं अ ईयर, राइट स्टूडेंट्स. सो दैट एन इमेजिनरी वे टू अर्थ्स रोटेशन, ये एक इमेजिनरी वे है अर्थ्स रोटेशन के रिलेटेड एंड अराउंड द सन. एंड ये जो स्पेस है जो पूरे के पूरे वो गोल घूमते हैं, सन के गोल घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके. एंड अलॉन्ग विद दिस अर्थ डू नॉट मूव. अर्थ मूव करता है अपने ही पाथ में, वो अपने ही जगह में गोल घूम घूम के पूरे सन का ले लेता है एक पूरा राउंड. तो जो डिस्टेंस सन और अर्थ का है वो हर साल सेम नहीं होता है, नॉट सेम, मतलब हर साल सेम नहीं होता है अर्थ और सन की डिस्टेंस. तो जब अर्थ रोटेट्स होते हैं उसके एक्सिस में, कभी वो 23.5 डिग्री में रोटेट होते हैं एंड कभी वो 66.5 डिग्री अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट में 66.5 डिग्री तक वो घूमते हैं.
तो ये जो मूवमेंट है अर्थ का, वो सीजन्स, ये जो ऑर्बिट में घूमते हैं ना, इसलिए हमारे में सीजन्स चेंजेस होते हैं और डे एंड नाइट होता है। कब क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं तो कभी कभी डे बड़ा हो जाता है और नाइट शॉर्ट, और कभी कभी नाइट शॉर्ट हो जाते हैं एंड डेज बड़े हो जाते हैं. So like that way, this signifies the revolution, students. Okay, now we will discuss about the day and night part. Due to daily motion of the earth, day and night occur. As the earth is tilted and rotates on its own axis, the sun shines only on half of it and the other half is dark. If earth would not have rotated, then on one side only light would have been there, while on the other side it would have remained dark. But it isn't so. Thus every part of earth experiences light from darkness and darkness. So students, we all know about the rotation and revolution now, right? सो डे एंड नाइट ड्यू टू द डेली मोशन, ये जो अर्थ अपने एक्सिस में घूमते हैं उसके वजह से डे एंड नाइट ऑकर होता है, राइट? सो ये जो अर्थ रोटेट्स होते हैं अपने एक्सिस में स्टूडेंट्स, तो सनशाइन हाफ जगह पे होते हैं, राइट? सूरज का जो धूप है वो आधा जगह पे आता है, रोशनी होती है, और आधा जगह में डार्क हो जाता है, राइट? कि सन तो नहीं घूम रहा, हमारा अर्थ घूम रहा है, राइट? सो जब सन की तरफ आता है तब वो जो पोर्शन होता है अर्थ का वो सन के तरफ आता है, वहाँ पे वो डे होता है, और जो पोर्शन में सन की किरणें नहीं आता है वो होता है नाइट, स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली. सो दैट्स व्हाई इट रिमेन्स डार्क इन द बैक साइड ऑफ द अर्थ एंड द फ्रंट साइड ऑफ द अर्थ वुड बी द लाइट इन फ्रंट ऑफ द सन, राइट स्टूडेंट्स? इसलिए अर्थ के सारे पार्ट में कभी रात होती है और कभी दिन होता है. ये इस तरह से होता है क्योंकि वो अपने ही जगह में गोल 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 घूमते 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 चले जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पेज, स्टूडेंट्स. डार्कनेस फ्रॉम लाइट इन एवरी 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में डार्क जहाँ पे होता है वहाँ पे लाइट हो जाता है, और जहाँ पे लाइट होता है वहाँ पे डार्क हो जाता है, मतलब डे एंड नाइट का पोर्शन होता है. बिकॉज ऑफ इट एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. एज द अर्थ इज टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस, वी फाइंड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. तो इसलिए हर जगह पे अर्थ के सारे पोर्शन में मॉर्निंग भी होता है, आफ्टरनून भी होता है और इवनिंग भी होता है, स्टूडेंट्स. तो अर्थ की एक्सिस में उसकी जो डिफरेंस है लेंथ और डे एंड नाइट पता चलता है. सो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी बाय दिस डे एंड नाइट पोर्शन. देखो ये सन है, सन की रोशनी इस तरफ आ रही है, राइट? तो ये जो भाग है वो डार्क है, बट ये जब रोटेट होगा एंड 24 आवर्स होंगे तो ये वाला पार्ट आगे हो जाएगा और ये वाला पार्ट पीछे हो जाएगा. तो यहाँ पे रोशनी होगी और यहाँ पे नाइट होगा. सो इसी तरह से हम लोग 24 आवर्स में डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करते हैं, स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. Sun rays falls directly on Tropic of Cancer on 21st June, on Tropic of Capricorn on 22nd December. Where the sun rays fall directly and in the adjacent areas, the days are longer and the nights are shorter. Where the sun rays fall diagonally, the days are short and nights are long. While days and nights are of same length on 21st March and 23rd September. So students, सन रेज मतलब जो सन की किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून में आता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर में. तो ये जो सन की किरणें हैं वो एरियाज़ के हिसाब से डायरेक्टली जाता है, तो इसीलिए कभी कभी डेज लॉन्ग होते हैं और कभी कभी डे नाइट्स शॉर्ट होते हैं. एंड जब डायगोनली जाते हैं मतलब एकदम पैरेलल इस तरह से जाता है एज अ प्लेन, तो कब क्या होता है, तब डेज शॉर्ट हो जाता है और नाइट्स लॉन्ग हो जाते हैं. इसलिए सबसे ज़्यादा डे एंड नाइट में जो सेम लेंथ होता है, सबसे ज़्यादा सेम मतलब दोनों तरफ एक ही जैसा लेंथ होता है, वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ वी विल सी द होल dilemma
of how the 21st March equinox would be happen. So you can see this one in your textbook with the help of your textbook. See, and you have to draw this one in your notebook, students, okay? And this one is the part of long, short, day and night northern hemisphere. This one you have to do it, okay students? मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी, so you can clearly watch that out. Now we will see the next part, students, okay? So students, now we will discuss about the seasons, okay? You all know about the seasons. So as the earth is titled on its axis, one by one northern hemisphere and southern hemisphere come in front of the sun. The rays of sun fall straight on north or south of equator. Thus, there is difference in day and night. In the areas where sunshine is for longer time, they experience summer. Whereas the areas the sunshine is for shorter time, they experience winter. Season directly affects human life. So students, seasons के बारे में तो आप लोग को पता ही है. Obviously, we always in the year we feel seasons, right? So when in the northern hemisphere and southern hemisphere come in the front of sun के सामने आ जाता है, तो जो सन की जो किरणें हैं वो नॉर्थ और साउथ इक्वेटर में जाएगा. इसलिए डे और नाइट के टाइमिंग में डिफरेंसेस होते हैं. इसलिए कभी कभी सनशाइन जब होता है तब बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो हम लोग फील करेंगे कि समर है. मतलब जब दिन बड़ा हो जाता है तब वो समर सीज़न होता है, और जब दिन छोटा हो जाता है तब वो विंटर सीज़न होता है. और सीज़न के थ्रू हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है स्टूडेंट्स, ओके? ये था सीज़न के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द उत्तरायण. So the direct rays on the sun begin to fall towards north of equator. Thus, northern solstice occurs on 22nd December. Sun enters Makar Rashi on 14 January. So it is called Makar Sankranti. Dakshiniyan. From 22 June, the direct rays of the sun shift from Tropic of Cancer towards south of equator. It is called Dakshiniyan. सो स्टूडेंट्स, उत्तरायण आप लोग को सबको पता है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फेस्टिवल वी enjoyed in India, right students? And we just fly our kites in the sky. So why we celebrate Uttarayan? So we celebrate Uttarayan because the sun rays directly fall to the north of equator, north side of equator. So नॉर्दर्न सॉलिस्टियर ऑकर्स ऑन 22nd दिसंबर. जो ये नॉर्दर्न सॉलिस्टियर्स होते हैं वो 22nd दिसंबर को आता है. तो सन उस टाइम में मकर राशि में इंटर कर देता है, आ जाता है. कब तक? 14 जनवरी. तो सन कब इंटर होता है? 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाता है. इसलिए हम लोग इसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट? नाउ दक्षिणियन. ऑन 22 जून जो सन की किरणें होते हैं वो शिफ्ट हो जाती, चेंज हो जाती है, और फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और वो कहाँ चली जाती? साउथ ऑफ इक्वेटर में चली जाती. इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणियान. ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विनॉक्स. सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर. दिस intersection is called equinox. During equinox, sun moves towards northern hemisphere. So, from 22nd March, length of days increases and nights become short. On 21st June, longest day and shortest night is experienced in northern hemisphere. As the sun moves towards southern hemisphere, from 24th September, length of the days start increasing and nights become shorter. On 22nd December, days are longest and nights are shortest in southern hemisphere. During the year on 21st March and 23rd September, sun rays fall straight on equator, because of which nights and days are equal, and it is called equinoxes. So students, equinox, we will discussing about the equinox. So ये जो sun और equator intersect, मतलब साल में ईच अदर 2 बार इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब
इस तरह से डायगनली कट होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो जो इंटरसेक्शन होता है इक्विनॉक्स में वो इक्विनॉक्स के थ्रू ही होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन से तारीख में 22 मार्च को आता है। इसलिए 22 मार्च को सबसे बड़ा डे माना जाता है, मतलब लॉन्ग हो जाता है और नाइट उस टाइम में शॉर्ट हो जाता है। और 22 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे माना जाता है और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाता है स्टूडेंट। वो कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जब सन मूव्स हो जाता है, चेंज हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर से आ जाता है, तब 24 सितंबर को जो लेंथ होती है डे और नाइट की वो शॉर्ट हो जाती है, मतलब डे इंक्रीज हो जाता है और नाइट डिक्रीज हो जाता है। और 22 दिसंबर को डे सबसे लॉन्ग हो जाता है, 22 दिसंबर को डे सबसे लॉन्ग हो जाता है और नाइट शॉर्ट हो जाता है इन सदर्न हेमिस्फीयर के। इसलिए जो 21 मार्च और 23 सितंबर के जो सनराइज़ होते हैं उस टाइम में डेज और नाइट्स दोनों इक्वल होते हैं, मतलब दोनों के दोनों इक्वल होते हैं एज अ लाइक वे। और जब वो इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डेज एंड नाइट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्सेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीप ईयर। Since 1 year of Earth is 365 days and 6 hours, but it is difficult to calculate 1/4 of the day. So we count year as having 365 days. In order to compensate, remaining 6 hours are added to the month of February every 4 years. That is, February has 29 days in place of 28 days. We call that year leap year. सो स्टूडेंट्स, लीप ईयर मैंने आपको पहले ही बोला कि 365 इन हाफ डेज होते हैं, राइट। सो एक साल कभी कंप्लीट होने में, मतलब एक साल कंप्लीट होने में 6 आवर्स लगते हैं, मतलब 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि किस तरह से हम लोग 4th डे कैलकुलेट करें। इसलिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? 365 डेज कैलकुलेट करते हैं। और जो 6 आवर्स होते हैं, 6 आवर्स होते हैं, वो हर मंथ फरवरी के जो मंथ होते हैं उसको हर टाइम हम लोग ऐड करते रहते हैं 6 आवर्स। तो इसलिए 4 साल में एक बार 29 डेज होते हैं फरवरी में, 28 डेज नहीं होते हैं। तो जिस साल 29 डेज होते हैं वो साल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर्स। और वो लीप ईयर कैसे हुआ स्टूडेंट्स? कि 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स जो ऐड होता गया फरवरी के मंथ में। इसलिए हम लोग 4 साल में एक ही बार 29 फरवरी सेलिब्रेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल सोचो स्टूडेंट्स, दैट वुड बी सो ऑकवर्ड ना कि 29 डेज़ को किसी का बर्थडे होगा तो वो बेचारा 4 साल में एक ही बार मना सकता है बर्थडे, राइट स्टूडेंट्स। दैट इज़ सो अनफेयर, बट क्या करें, दे विल मेक देम स्पेशल स्टूडेंट्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्लिप्स। आप लोग सबने सुना होगा इक्लिप्स क्या होता है। हिंदी में हम लोग इक्लिप्स को क्या बोलते हैं? ग्रहण। There are 2 parts, that is the solar eclipse and the lunar eclipse. First one is solar eclipse, that is हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूर्य ग्रहण, और lunar eclipse को क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण, right students? Good. So firstly we will discuss about the eclipse. We get light from sun and moon. Sun is self-illuminated and shines brightly, while the moon is illuminated with the light of the sun. Illumined part is seen on earth on different days, an occasion when moon or the sun seem to be completely or partially disappearing because one of them is passing between the other and the earth. In such situation it is eclipse. So students, हमें सन और मून से लाइट मिलती है, अर्थ को सन और मून से लाइट मिलती है, राइट स्टूडेंट्स। तो जब सन सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो जाता है और सन बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है तो क्या होता है कि मून बीच में आ जाता है, सन के बीच में। तो जो सन की लाइट होती है वो मून छुपा देता है।
तो इसलिए डिफरेंट डेज में कभी कभी जब ये रोटेशन होता है स्टूडेंट्स, तो वो जो लाइट होते हैं वो डिसअपेयर हो जाता है कम्प्लीटली, क्योंकि सन के बीच में मून आ जाता है इसलिए। तो बिकॉज वन ऑफ देम इज़ पासिंग, मतलब वो अपनी जगह से इन दोनों के बीच में से जा रहा है, इसलिए जब वो शैडो आता है उसको हम लोग इक्लिप्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं पिक्चर में बताऊंगी कि इक्लिप्स कैसे होता है। आप लोग को सबको पता भी है, पर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एंड दैट इज़ लाइक दैट वे वन ऑफ देम इज़ पासिंग बिटवीन द अदर, मतलब कोई भी एक दूसरे से बीच में से जा रहा है। तो वो जो सिचुएशन होता है बीच में से जाने वाले, उसको इक्लिप्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ECLIPSE, इक्लिप्स। ओके, सो हम लोग अब पहली बात करेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। मून इज क्लोज टू अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। Sometimes while revolving it comes between sun and earth. At this time, as the shadow of moon constrains, sun is not visible. This event is called solar eclipse. As the moon is very small as compared to sun, it cannot cover whole sun. Thus, solar eclipse cannot be seen all over the world together. Solar eclipse occurs on no moon day, but this event does not take place on every no moon day. So students, solar eclipse का आपको पिक्चर आपको दिख रहा है। अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ ये चीज़, या फिर डिटेल में, चलो दोनों बता देती हूँ। पता है आप लोग को कि अर्थ से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? मून है सबसे ज़्यादा नज़दीक। तो जब समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। देखो यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ के बीच में मून आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो मून बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, और सन के हिसाब से तो वो बहुत छोटा है, राइट। तो जो सन की जो दोनों सन और अर्थ के बीच में जब वो आया, तो उसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। कैन नॉट बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं देख सकते हम लोग, एक टाइम में एक ही जगह पे ही ये चीज़ देख सकते हैं। एंड सोलर इक्लिप्स के टाइम में नो मून डे माना जाता है। एंड ये जो इवेंट होता है इसको नो मून डे एग्जिट ही नहीं करते, मतलब डज नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे। मतलब जो पर्टिकुलर प्लेस में ये चीज़ दिखता है पूरे अर्थ में, एक या दो कंट्रीज़ में होपफुली दिखा जाता है, तो दैट इज़ अ मिरेकल, राइट। ये बहुत सालों के बाद ही ऐसा होता है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड मिरेकल। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, राइट। सी इसके रिफ्लेक्शन सन के पास आया, और सन तो बहुत बड़ा है मून से, तो इसके शैडो की वजह से ये बीच में आ गया, इसलिए ये चीज़ हमें अर्थ में दिखा जाता है, इसलिए इसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। क्योंकि जो अर्थ सोलर इक्लिप्स है वो विजिबल है, हम लोग देख सकते हैं। देखो ये लाइंस दिए हुए हैं, आपको इसका भी डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स। ओके, समझ गए आप? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द lunar eclipse students. Moon gets light from the sun. Thus, if the sun rays going towards moon are obstructed by the earth, then that part of moon remains dark. In nutshell, that much part of earth's shadow falls on moon. This part is not visible to us, which is called lunar eclipse. Such event occurs on full moon night. But such events do not take place on every full moon night. So students, lunar eclipse में इसका अपोजिट होता है। सोलर इक्लिप्स में क्या होता था? सन और अर्थ के बीच में मून आता था, राइट। बट लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। तो ये जो रीजन्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, ये वाले जो रीजन्स हैं, राइट। तो मून और सन के बीच में अर्थ आ गया, इसके वजह से जो मून का शैडो है वो इसमें आता है, इसलिए उसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और दिस पार्ट इज़ नॉट विजिबल टू अस, ये पार्ट हम लोग हर जगह नहीं देख सकते। तो जो अर्थ का जो शैडो होता है वो मून में पड़ता है, इसके वजह से इसको हम लोग लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और ये इवेंट को फुल मून नाइट भी बोला जाता है। एंड ये इवेंट हम लोग
नॉट टेक प्लेस, मतलब सारे जगह पे हर टाइम फुल मून नहीं होता है स्टूडेंट्स। आप लोग ने देखा ही होगा सोलर इक्लिप्स, तो आप लोग ने देखा ही है स्टूडेंट्स। वी हैव ऑलरेडी सीन यू विद द help of the instruments that we use it. So that is the part about the solar eclipse and the lunar eclipse. So students, ये चैप्टर अब हमारा फुल्ली कंप्लीट होता है एंड आपका होमवर्क क्या है, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स बनाना है और आपको लॉन्ग और शॉर्ट डे नाइट का भी ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम ड्रॉ करना है, लूनर इक्लिप्स ड्रॉ करना है और सोलर इक्लिप्स ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये होमवर्क आपको डेफिनेटली करना है और यू ऑल हैव टू सेंड मी दिस होमवर्क ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, so my work is now completed. Now it's your turn to do your work students. So I hope that you have understand my full explanation. So now I will see you in the next video with a lot of knowledgeable work students. Okay, so till there I will see you in the next video. Bye bye and have a nice day students.